Hello students, hi, this is Mandal sir. Today we are going to discuss about the revision test of online of chapter number 1, 2, 3. This is chapter integers, fractions and rational numbers. These three chapters you have to prepare for the online test, okay? Now the fact is that like PT1 exam, the questions of PT2 there will be a little bit of lengthy and must be difficult. For example, the questions of simplification of integers, simplification of fractions, simplification of rational numbers, it will come in your exam. So on that type of questions it will take a little bit of more time. So you have to practice those simplifications again and again so that you can complete the simplification very small interval of time. So students, listen. Another thing is, those students who will practice more and more, they will get more marks in this PT2 exam. And you know, there will be 30 questions. In the PT1 exam there was 20 questions. In this paper there will be 30 questions. Okay, and I think the time, at least 1 hour time will be provided. So one question you will get only 3 or 4 minutes, not more than of that. Okay, so let's start. Question number, this is one question I have given here. This type of question you have to practice. If x is divided by minus 25 and the quotient is 130, then find the value of x. Actually this quotient, dividend, divisor, you need to know what is that. After that you will be able to solve this type of questions. Actually you have to make a chart of division. Division का जो जिस तरह ये बनाते हैं ना, you make this type of box for division. So the question, in the question this is telling that x is, when x is divided by means x will be inside the box. It means x is divisor. Dividend, x is dividend, and it is x is divided by minus 25 and the quotient will be 130. You have to find out the value of x. So to solve this question, okay, pause the video and try to solve yourself. If you will not able to solve, then run the video again, then you will be able to see how I have done this question. See here. So first take a very normal number. Vishal, you sit down because no problem, sit down. Okay, so what should we do? We have to think a common number, a very easy number. For example, we are taking, suppose there is 5 and there is 4. What will be there? 20. Why 20 is there? Because if we multiply this and this, we will get 20. Now again divide it. 5 4 are 20. If you divide like that, then you will get this number. So must be, this x will be the product of this and this. So you can write the answer, you will write the answer like this. X is equal to minus 25 inside the box into 130. So when you are multiplying, minus and 130 has plus sign. Minus sign and plus sign what will be? क्या? Minus and minus plus multiply करेंगे तो क्या होगा? Now like minus, there is minus plus multiply करोगे तो क्या आएगा? Minus आएगा. बताए ना, minus क्या होता है? Minus into minus क्या होता है? Plus. Minus into plus क्या होता है? Minus. प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस. प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस. ये फॉर्मूला हमें याद रखना है और ये मल्टीप्लाई करने का टाइम में इसे लगाना है, ठीक है? सो दिस विल बी माइनस प्लस माइनस and 25 into 30, what will be answer? 3. Okay, Vishal has done its multiply, this and this multiplied, 3250 will be the answer. Okay, let me Vishal bring my phone from there. Okay, now next question I am going to discuss about the additive inverse.
I am going to discuss about the reciprocal. I am going to discuss about the reciprocal या फिर multiplicative inverse. Okay, so be with me. Okay, next question. Let me see about question. There will be some question. They will say about to find out the additive inverse, absolute value also. Three things are most important. Number one, additive inverse. Number two, reciprocal. Number three, absolute value. So these three very important. In each and every paper, test paper, you will find this type of questions. What is the additive inverse of such and such number? What is the multiplicative inverse of the such and such number? What will be the absolute value of such and such number? Okay, first we are going to learn about additive inverse. If they are telling what is the question number 2, what is the additive inverse of what will be the additive inverse of minus 3 upon 4? What will be the answer, Bishal? 4 upon 3. अरे बेटा एडिटिव इनवर्स के टाइम में सिर्फ उसका साइन चेंज करना है. ओके, गलती मत करना ये बात. एडिटिव इनवर्स के टाइम में सिर्फ साइन चेंज करना पड़ता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल एक ही बात होता है. उस टाइम में नंबर को फ्लिप करते हैं. ठीक है, इजिकल टू 3 अपॉन 4, ये प्लस साइन में होगा. ठीक है, आया बात समझ में? चलो आप एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूँ. जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, ऐसा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूँ. अच्छा देखते हैं. साहिल है ना यहाँ पे? वीडियो देख रहे हैं ना साहिल? साहिल कुरी नट, दैट इज साहिल कुरी का छोटा भाई होता है. रवि कुरी ऐसा कुछ होगा. हाँ, चलो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मानो क्या ऐसा बोल दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ इसका. देखो क्या बताएं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है. तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है +7/9. इसका मतलब ही तो +7/9. तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -7/9. याद रहना ये बात. देखो ये एडिटिव इनवर्स ये अंदर में है. इसका मतलब इस एडिटिव इनवर्स किसका निकालना है? ये पूरा का निकालना है. और एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, मॉड्यूलस के अंदर, ये साइन मॉड्यूलस का है. ये मॉड्यूलस के अंदर जब किसी, हम मॉड्यूलस कब लेते हैं? जब किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में बदलना है. कोई तुम्हें बोल दिया कि मुझे -300 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है, उसका मतलब क्या है? हमें कोई तुम्हें पूछा, somebody ask you, मुझे -300 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब क्या है? उसका घाटा हुआ है. कितना रुपया? 300 रुपीज़. तो मतलब इसे पॉजिटिव में जब लेते हैं हम इसे एब्सोल्यूट वैल्यू में लेते हैं. ठीक है, तो बताएंगे भैया इसका नुकसान हुआ था. कितना? इतना रुपया. इसका इतना रुपया नुकसान हुआ था. ठीक है, आया बात समझ में? एब्सोल्यूट वैल्यू लेना मतलब होता है उसका पॉजिटिव साइन लेना है. तो इसका पॉजिटिव साइन क्या होगा? ये वाला होगा 7/9 होगा. और उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ये 7/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? क्या है बात समझ में बेटा? पहले ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, उसके बाद उसका एडिटिव इनवर्स लेना है. पहले इसका ये वाला सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद उसका एडिटिव इनवर्स लेंगे. ठीक है, इसको समझ में आ गया तुम्हें? अब हम सीखेंगे एडिटिव इनवर्स के बाद सीखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. व्हाट इज ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीखते. चलो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका लेंगे? मानो कि इसका लेना है, 3/4 को लेना है. तो कितना आएगा आंसर?
4/3 हमेशा उल्टा करना पड़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, क्या आपको पता है? विशाल बोल सकते हो क्या? कैन यू टेल मी व्हेन वी यूज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? व्हाट वी यूज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कब इस्तेमाल करते हैं? नो, कैन यू टेल मी एनीबॉडी? आरुषि, महिमा, खुशी, वसुंधरा, मेरे बी सेक्शन वालों जवाब दो। सौम्या, हाँ सौम्या, दीपांशु, क्या पूछा मैंने? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल किस टाइम में इस्तेमाल होता है? नहीं बोल सकते विशाल? यार तुम तो बहुत ही ये हो, कितना क्वेश्चन करवा दिया डिवाइड के टाइम में, है ना? जब तुम एक डिवाइड कर रहे हो ऐसा 3/4 डिवाइड 2/9, तो क्या करते हो? 2/9 का रेसिप्रोकल लेते हो ना तुम, है? क्या समझ में आया आपको? जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, दिमाग में घुसा नहीं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कोई नंबर को फ्लिप करना। अगर अच्छा ये विशाल बताओ, इसके पास अगर माइनस होता तो क्या हो जाता? इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता? 4/3 तो होता, तो -4/3। ये बात समझ में आया क्या? से साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है? अच्छा अगर ऐसा ऑप्शन आएगा, बताओ क्वेश्चन नंबर 3 समझाता हूं, नहीं 4, ये तो 3 हो गया, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करोगे? उल्टा कर दोगे नंबर को। अच्छा क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहे कि 4 ऑप्शन देगा, ठीक है? एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा बताएगा द रेसिप्रोकल ऑफ -2/7 इज, ये देखो नंबर ए ऑप्शन होगा -2/7, नंबर बी ऑप्शन होगा 2/7, नंबर सी ऑप्शन होगा ऐसा -2/7, सॉरी अच्छा ऐसा, और डी ऑप्शन ऐसा होगा -7/2। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है कि ये उल्टा हो गया, जहां पे साइन चेंज नहीं होगा, है ना? अच्छा ऑप्शन अगर ऐसा आएगा, ए ऑप्शन बता दिया -7/2, बी ऑप्शन ऐसा आया 7/-2, सी ऑप्शन ऐसा आया 7/-2 और डी ऑप्शन नहीं, सॉरी, सी ऑप्शन में आया बोथ ए एंड बी करेक्ट, नंबर डी नोटा। कौन सा आंसर सही होगा? ए -7/2, बी 7/2, सी में बोल रहे हैं बोथ ए एंड बी करेक्ट, और डी में बोल रहे हैं नॉट अबव, हाँ ए होगा क्या? बी नहीं होगा? होगा, बी भी होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? ये माइनस तुम जहां पे भी दो, मैंने एक दिन बताया था तुम्हें, ये क्या है? -2/7 का जो भी मतलब होता है, और 2/7 का भी वही, -7 का वो भी मतलब होता है, और 2/7 माइनस, यहाँ पे माइनस ऊपर हो, माइनस नीचे हो, और माइनस बीच में हो, बात एक ही बात होता है। ये बात याद रखना होगा, ठीक है? तो तुम्हारा ये क्वेश्चन का आंसर होता बोथ ए एंड बी। इसीलिए बता रहा हूँ बेटा, इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, और सौम्या बाबू क्या करना है, बहुत सोच समझ के आंसर करना है, और इसीलिए हर एक क्वेश्चन का कितना टाइम आता है? कम से कम 3-4 मिनट। बटन दबा देना मत, हड़बड़ करके बटन दबाओगे तो गया काम से तुम। और एक क्वेश्चन का पता है आपको 2 नंबर होगा, तो 14, ओके 20 मिनट बनाएंगे, चलो ठीक है। नेक्स्ट, तो बेटा समझ में आया ना? माइनस यहाँ पे हो, माइनस नीचे हो, और माइनस बीच में हो, कहाँ पे भी हो, ये दोनों ही आंसर ही राइट है इसका, तो इसलिए बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है?
ऐसा भी आ सकते हैं, ये कोई भी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई भी उसका आंसर सही नहीं होगा, तो उसमें आपको नोटा में ये दबाना है, अपना बटन दबाना है नोटा में, ठीक है। तो इसके बाद आप सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ वैसा क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा भला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन याद रखना, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का या फिर स्क्वायर का, या फिर पेरीमीटर बता देगा तुम्हें, उसमें से क्या निकालना है, साइड निकालना है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूं, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 6/7 एक स्क्वायर का पेरीमीटर है, इसका फाइंड इट्स वन साइड, फाइंड इट्स ईच साइड, इसका सारे साइड निकालना है। अच्छा विशाल बताओ, मानो कि तुम्हारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर फील्ड है, और उसे स्क्वायर फील्ड का जो पेरीमीटर बता दिया वो 40 है, 40 मीटर। बताओ इसका वन साइड, व्हाट विल बी द वन साइड ऑफ दिस पेरीमीटर, 10। हाउ इट केम? Yes, you have to divide the perimeter by 4. Okay, so here we also यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करना है। तो बताओ 6/7 डिवाइड 4, ये किस तरह करोगे, चलो करके दिखाओ। 6/7 डिवाइड 4, थोड़ा खुद करके देखो, उसके बाद वीडियो को पॉज करके देखो आंसर हमारे साथ मिलता है क्या आपका, देखते हैं। Okay, I am rubbing this now. क्या मिला है आपका आंसर मेरे साथ, क्या बोले 6/7 डिवाइड 4 इज इक्वल टू, ये 4 को क्या के लिखेंगे, 6/7 डिवाइड 4/1। बहुत बार बता दिया ये बात। अब जो बच्चे घर में बैठ कितना दिन क्वारंटाइन में थे, घर में क्वारंटाइन हुआ थे ना, वो अभी पढ़ाई कुछ नहीं किया, पैर पढ़ाए स्कूल से कि बच्चे अपने फ़ोन लेके अपने क्लास ले लो, लेकिन जो बच्चे लिया नहीं वो तो भुगतेगा। ये जितना टाइम मिस हो गया उसको तो खमियाना भुगतना नहीं पड़ेगा उसे। क्या समझ में आ रहा है ना मेरा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो बेटा अगर अभी भी वक्त है, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी अपना फ़ोन लेके पूरा जितने टीचर सारे लेक्चर भेज रहे हैं इसी लेक्चर को देखो और अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। हाँ अरे क्या बताओ, पबजी है, फ्री फायर, ये सब खेल के क्या होगा, कोई फायदा है, बताओ कितना करोड़ कमा लोगे। सौम्या एक दिन बोल रहा था सर बहुत मज़ा आता है ना, बट वी आर अबाउट दैट। तो क्या ये तो रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, नहीं है 6/7 इंटू 1/4 हो जाएगा, है ना। तो 6/28, इसे छोटा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3/14। बेटा ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 3 जा 6 और 2 14 जा 28, इसलिए 3/14 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह आपको करना है। अच्छा अब ऐसा बता दिया, चलो इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे, ठीक है। क्या विशाल पता है तुम्हें द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है? हाँ 2 × L + B, यस, सबको ही पता होगा शायद। तो अगर ऐसा बोल दिया एक ऐसा रेक्टेंगल है, इसका लेंथ बता दिया 4 होल या 1/3 और इसका लेंथ बता दिया 4 होल 1/3 और इसका ब्रेथ बता दिया 3 होल 1/9। तो इसका क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है बेटा, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये काम आपका ये वाला फॉर्मूला लेंगे 2 × L + B। यहाँ पे L के जगह क्या पुट करेंगे 4 होल 1/3 और B की जगह क्या पुट करेंगे 3 होल 1/9। इसका तरह पुट करके क्या कर सकते हो आप बच्चे,